Hello children, welcome to NCERT English classes. I am Manisha Srivastava. Today I am here to explain you chapter 1 of the book Snapshots, which is for students of class 11. The title of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. In this video, I will tell you about the author, chapter sketch and characters, and detailed summary of the chapter. So let's begin with about the author, who is William Saroyan. William Saroyan was born on 1908 and died on 1981. Was an Armenian American novelist, playwright and short story writer. He was awarded the Pulitzer Prize for Drama in 1940 and in 1943 won the Academy Award for Best Story for the film adaptation of his novel The Human Comedy. Now coming to the next point, which is chapter sketch and characters. The story is about two poor Armenian boys who are fond of riding horses. Aram, 9 years old, and Murad, 13 years old, belong to the Garaglanian tribe, whose people were well known for honesty and trust. Murad is able to steal a horse, and after enjoying riding for 1 month, he invites his cousin to join him in horse riding. Finally, they decide to return the horse to its owner as they did not want to bring any shame for their family. Armenia, which is situated in southern West Asia. आर्मेनियन बॉयज की कहानी है ये, जो एक ऐसा गैरग्लानियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो कि अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए जाना जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, तो मेन कैरेक्टर्स यानी प्रोटैगनिस्ट तो दो हैं. फर्स्ट वन इज अरम, हु इज नरेटर हियर, जो कहानी सुना रहा है. ही इज 9 years old और ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग. एंड मुराद, ही इज 13 years old boy, Aram's cousin, or he is also fond of horse riding. John Byro, who is the owner of this white horse, and Uncle Khusro, Aram के चाचा हैं, जो कि क्रेजी, बैड टेम्पर्ड हैं और सन की रूप में जाने जाते हैं पूरे खानदान में. That's all about the characters. Now I will tell you the detailed summary of the chapter. Narrator here remembers an experience when he was 9 years old. The world for Aram at that time seemed to be delightful and joyous. Aram, जो कि यहाँ नैरेटर भी है, स्टोरी को सुना रहा है, उस समय की एक मेमोरी उसको याद है जब वो 9 साल का था. उस समय बच्चों के लिए दुनिया बहुत ही जॉयस और डिलाइटफुल होती है, खुशी भरी होती है. मुराद, whom everybody considered crazy, came at 4 in the morning and woke up Aram by tapping on the window of Aram's room. मुराद, जिसको पूरे खानदान में सब लोग क्रेजी कहते थे, पागल या बैड टेम्पर्ड कहते थे, वो 4 बजे सुबह अरम के घर पर आता है और उसके विंडो को टैप करके अरम को जगाता है. It was summer with daybreak just around the corner. समर यानी गर्मी के दिन थे और बस सुबह होने ही वाली थी. Aram jumped out of bed and could not believe his eyes. अरम बिल्कुल कूद के बिस्तर पर से उठा और बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका. मुराद was sitting on a beautiful white horse. मुराद एक खूबसूरत व्हाइट घोड़े पर सवार था. मुराद asked him to be quick if he wanted to ride. मुराद उससे कहता है जल्दी से आओ अगर तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो. Aram had always longed to ride a horse, but they were very poor. They could not afford a horse. अरम की बहुत लंबे समय से विश थी, इच्छा थी कि वो घोड़े को चलाए, बट चूंकि वो बहुत पुअर थे, इसलिए वो कभी एक घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे. The Garaglanian family was poor as they had no money. जिस फैमिली या ट्राइब को ये दो बच्चे बिलोंग करते थे, गैराग्लेनियन ट्राइब, वो बहुत ज्यादा गरीब थी और उनके पास कोई पैसा नहीं हुआ करता था. Their whole tribe was poverty stricken. उनका पूरा ये कुनबा, पूरा ये जाति पूरी पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, मतलब गरीबी की मारी हुई थी. But most important of all was
that they were famous for their honesty. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हालांकि वे बहुत गरीब थे, पूरा का पूरा कुनबा, लेकिन वो पूरा कुनबा अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए जाना जाता था. From a long time, they had built up a reputation for being proud and honest. बहुत लंबे समय से उन्होंने अपना ये रेपुटेशन बना रखा था, जिस पर उनको ऑनेस्ट होने पर अपने बहुत गर्व था. They would never even take advantage of anyone. इतने गरीबी के बावजूद कि उनके पास खाने को भी नहीं होता था 2 टाइम का अक्सर, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाया. Aram asked Murad if he had stolen the horse. Aram मुराद से पूछता है, क्या तुमने घोड़ा चुराया है? मुराद called him out instead of answering. मुराद उसको कुछ आंसर नहीं देता, बल्कि उसको बाहर बुला लेता है. Aram was sure that the horse was stolen as they were both very crazy about riding horses. Aram को श्योर है, ये निश्चित है कि ये जरूर घोड़ा चुराया गया है, क्योंकि दोनों के दोनों, अरम और मुराद, दोनों ही बहुत हॉर्स राइडिंग के जबरदस्त शौकीन थे. To console himself in a childish manner, Aram thought that stealing a horse for a ride was not the same as stealing something like money. It would not have been stealing until they offered to sell the horse. मतलब ये है कि अपने आप को एक बचकाने तरीके से अरम तसल्ली देता है कि मुराद ने घोड़ा चुराया नहीं है, इसको चुराना नहीं कह सकते, क्योंकि अगर घोड़ा चलाने के लिए, उनके हिसाब से अगर घोड़ा चलाने के लिए लिया गया है, अपने शौक को पूरा करने के लिए, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे पैसा चुराया गया हो. मतलब उनके लिए ये चोरी नहीं थी जब तक कि वो घोड़े को बेचने के लिए नहीं जाते. Aram got ready and jumped out of the window. As they lived on the boundary of the town on Walnut Avenue, there was the vast countryside full of orchards, vineyards and irrigation ditches nearby. घोड़े को देखकर अरम इतना एक्साइटेड हो गया कि तुरंत जल्दी जल्दी तैयार हुआ और खिड़की से कूदकर बाहर चला गया. वो लोग टाउन की बाउंड्री पर वॉलनट एवेन्यू में रहते थे और उनके घर की, उनकी कॉलोनी के आसपास का जो एरिया था, जो लैंड था, जो सीनरी दिखती थी रूरल एरिया की, वो पूरा फुल ऑफ ऑर्चर्ड्स, मतलब बगीचों से भरी थी. वाइनयार्ड्स यानी ग्रेप वाइन्स, जो अंगूर के लताएं जहां पर होती हैं, अंगूर के जो बागीचे होते हैं, वाइनयार्ड्स कहे जाते हैं. और नजदीकी इरिगेशन डिचेस यानी नहर भी थी. पहले ट्यूबवेल वगैरह तो चलता नहीं था, तो इरिगेशन या सिंचाई करने के लिए लोग नहरें खोदते थे और वहां पे पानी स्टोर करके रखते थे. तो ये सब नजारा देखने को मिल रहा था. In a few moments, both Aram and Murad were having a wonderful time riding the horse. कुछ ही समय तक मुराद और अरम को इतना मजा आने लगा, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हॉर्स राइड करते समय. मुराद started singing out of excitement and enjoyment. मुराद तो बिल्कुल खुशी के मारे और एक्साइटमेंट में गाना तक गाने लगा. मुराद was considered the natural inheritor of the crazy streak of their tribe. इस ट्राइब में एक परंपरा रही थी कि हर जनरेशन में एक मेंबर क्रेजी या सनकी जरूर होता था. तो मुराद को इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला समझा जाता था, यानी he was considered crazy, उसको सनकी माना जाता था. Before मुराद, अंकल खुसरो was considered as crazy in the family. मुराद से पहले की जनरेशन में अंकल खुसरो को क्रेजी माना जाता था. खुसरो had a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. खुसरो, अंकल खुसरो का एक बड़ा सा हेड था जिस पर खूब सारे घने बाल काले, और सैन जोआकिन वैली में उनकी मूछें सबसे बड़ी हुआ करती थी. मुराद was considered a crazy boy, though his father Mr. Zorab was a practical man without having any crazy streak. मुराद को एक सनकी लड़का, एक क्रेजी बॉय कहा जाता था, हालांकि उसके पिता मिस्टर जोराब एक प्रैक्टिकल आदमी थे, उनके अंदर कोई भी क्रेजीनेस या सनकीपन नहीं था. After enjoying the horse ride together, Murad wanted to ride the horse alone. कुछ समय तक दोनों साथ साथ हॉर्स राइडिंग करते रहे और उसके बाद मुराद चाहता था कि वो अकेले घोड़े को चलाए. मुराद kicked the horse and it started running. तो वो अकेले घोड़ा चलाने लगता है, अरम को उतार देता है और उसने किक किया घोड़े को और घोड़ा दौड़ने लगा. After 5 minutes, मुराद stopped. 5 मिनट के बाद मुराद रुक गया. Now
Aram also wanted to ride the horse alone. अब Aram भी अकेले घोड़ा चलाना चाहता था. Murad was not sure that Aram could ride the horse alone, as he did not know that how to control a horse. Murad श्योर नहीं था कि अरम अकेले घोड़ा चला देगा, क्योंकि वो अभी छोटा था, 9 years old था और उसको घोड़े को कंट्रोल करने, उस पर चलाने नहीं आता था. Aram leaped on to the back of the horse and for a moment felt a fear like he had never felt before. Aram कूदकर घोड़े की बैक पर बैठ गया और एक क्षण को उसको ऐसा डर लगा कि उसको ऐसा डर पहले कभी नहीं महसूस हुआ था. He kicked into the muscles of the horse and then it started running. उसने भी मुराद की तरह घोड़े की मसल में किक किया और वो दौड़ने लगा. Instead of running across the field, the horse ran to the vineyard and leaped over 7 vines before Aram fell. और उसके बाद वो फील्ड की तरफ, खेतों की तरफ दौड़ने के बजाय वाइनयार्ड्स की तरफ, ग्रेप वाइन्स की, जहाँ पे अंगूर के पेड़ थे, पौधे थे, वहां पे उसकी तरफ दौड़ गया और 7 लताओं को कूदते हुए उछलता हुआ चला गया जहां पर अरम घोड़े पर से गिर पड़ा. मुराद came running as he was worried about the horse. मुराद पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गया क्योंकि उसको डर तो पहले ही लग रहा था कि अरम घोड़ा नहीं चला पाएगा और वो वरीड था घोड़े के लिए. He wanted to get hold of the horse and take him back before anyone could see him. वो ये चाहता था कि घोड़े को पकड़ ले और इससे पहले कि उन दोनों को कोई देख पाए घोड़े के साथ, वो उसको रखना चाहता था. The horse got lost. लेकिन घोड़ा खो गया. Both of them searched for the horse in different direction. अब अरम और मुराद दोनों परेशान हो गए और दोनों घोड़े को ढूंढने लगे अलग अलग डायरेक्शंस में. It took half an hour for them to find it. उन दोनों को उस घोड़े को खोजने में लगभग आधा घंटा लग गया. Morning and Murad was thinking either to take the horse back or hide it until the next morning. Aram concluded that Murad was going to hide it. Aram again asked Murad if he had stolen the horse. Murad avoided answering the question. सुबह हो चुकी थी और मुराद ये सोच रहा था कि घोड़े को वापस कर दें या फिर अगली सुबह तक कहीं छुपा कर रख दें. अरम अब ये अंदाजा लगाता है कि मुराद घोड़े को छुपा कर रखने वाला था, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा शौकीन है घोड़ा चलाने के और अभी इतनी जल्दी वापस नहीं करना चाह रहे थे. अरम फिर से पूछता है मुराद से कि क्या तुमने घोड़ा कहीं से चोरी किया है? तो मुराद बिल्कुल कोई जवाब नहीं देना चाहता, अवॉइड करता है. He told Aram to tell everyone that they started riding the horse that very morning if someone found out. अब मुराद अरम को ये समझाता है कि जिस भी समय या जिस भी दिन हमें फाइंड आउट कर लिया गया घोड़े के साथ, तो यही कहना है कि हमने आज सुबह से ही बस घोड़ा चलाना शुरू किया है. They took the horse to the deserted vineyard of a farmer named Fethwajian and hid it in the barn. अब वे घोड़े को लेकर एक निर्जन ऑर्चार्ड, ग्रेप ऑर्चार्ड में जाते हैं, अंगूर के बगीचे में, जो कि फेतवाजियान नाम के फार्मर की है और ये शहर से दूर आउट हाउस है. वहां पर ले जाकर हॉर्स को बांध देते हैं. In the afternoon, Uncle Khusro came to Aram's house for coffee and cigarettes. दोपहर को अंकल खुसरो अरम के घर पर आते हैं कॉफी और सिगरेट के लिए. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro. उसके बाद एक अलग मेहमान, एक अलग आगंतुक आता है दूसरा, जिसका नाम है जॉन बायरो और जो कि किसान है. He said that his white horse, which was stolen the previous month, was still missing and untraceable. वो ये बताता है कि उसका सफेद रंग का एक घोड़ा पिछले महीने गायब हो गया था और वो अभी भी पाया नहीं जा सका. John Byro also explained that his carriage was no good without a horse and he had to walk 10 miles to reach there. जॉन बायरो ये भी बताता है कि उसकी गाड़ी बिना घोड़े के बिल्कुल बेकार हो गई है और उसको वहां उनके घर आने के लिए लगभग 10 मील पैदल चल के आना पड़ा है. अरब went to Murad and informed him about John Byro's visit. अरब मुराद के पास जाता है और उसको जॉन बायरो के अपने घर आने के बारे में बताता है. He further informed Murad that he should not return the horse until Aram had learned riding. और वो बिल्कुल मुराद से ये कह देता है कि जब तक मैं
घोड़ा चलाना सीख न जाऊं अच्छे से तब तक घोड़े को वापस नहीं करना। Murad replied that it would take him a year to learn and they could not keep a horse for 1 year as it would amount to stealing. मुराद अरम से कहता है कि तुम्हें घोड़ा चलाने सीखने में लगभग 1 साल का वक्त लग जाएगा और इतने समय तक हम उसको नहीं रख सकते घोड़े को अपने पास, क्योंकि ये लगभग चुराने के बराबर हो जाएगा। Finally, they decided to return it after 6 months to its true owner. Finally, वो ये डिसाइड करते हैं कि 6 महीने के बाद इसके मालिक को घोड़ा रिटर्न कर देंगे। Every morning for 2 weeks they rode the horse. 2 हफ्ते तक लगातार सुबह सुबह उसी तरह 4 बजे से और जब तक कोई जग न जाए तब तक ये घोड़े को चलाते हैं। Every time the horse threw Aram and ran away. हर बार जब भी अरम अकेले घोड़ा चलाने की कोशिश करता है, घोड़ा उसको फेंक देता है, गिरा देता है और भाग जाता है। But Aram kept his hope alive and hoped to ride the horse the way Murad rode. लेकिन अरम अपने अंदर होप अलाइव रखता है और सोचता है और कोशिश करता रहता है कि वो भी एक दिन मुराद की तरह से घोड़ा चला ले। One morning they were on their way to the vineyard when they encountered John Byro. एक दिन घोड़ा चलाने के बाद सुबह जब वो आउटहाउस में बांधने जा रहे थे वाइनयार्ड में घोड़े को, उस वक्त उनकी मुलाकात जॉन बायरो से हो जाती है। He inquired about the name of the horse with them. अब दोनों बच्चों से, मुराद और अरम से, जॉन बायरो घोड़े का नाम पूछता है। मुराद said that its name was My Heart. मुराद बताता है कि इस घोड़े का नाम My Heart है। जॉन बायरो kept observing the horse very keenly. जॉन बायरो घोड़े को बहुत देर तक उत्सुकता से देखता रहता है। The farmer looked into the horse's mouth and found that the teeth matched those of his stolen horse. जॉन बायरो किसान जो है वो घोड़े के मुंह में देखता है और उसको ये पता चलता है कि जो दांत हैं उसके वो बिल्कुल उसके चुराए हुए घोड़े से मैच करते हैं। He said that he could swear that the horse was his. वो ये कहता है, वो कसम खा के कह सकता है कि ये घोड़ा उसी का है। If he did not know their parents and the fame of their family for honesty. अगर वो उन बच्चों के पेरेंट्स को ना जानता होता और उनकी फैमिली या ट्राइब को ना जानता होता जो कि फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए। बट द हॉर्स अपीयर टू बी द ट्विन ऑफ हिज स्टोलन हॉर्स। लेकिन ऐसा लगता है कि ये घोड़ा उसके चुराए हुए घोड़े से का ट्विन है, यानी जुड़वा घोड़ा है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि ये बच्चे जो कि एक ऐसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं जो अपनी ऑनेस्टी के लिए विख्यात है, वो चोरी कर सकते हैं। इसलिए वो समझ कर भी कि उसको लगता है कि ये घोड़ा मेरा ही है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये उसका कोई जुड़वा घोड़ा है। Early the following morning, the boys took the horse to John Byro's vineyard and left it there. अब अगली सुबह दोनों बच्चे अरम और मुराद घोड़े को ले जाते हैं और जॉन बायरो के वाइन यार्ड में, यानी अंगूरों के ऑर्चर्ड में ले जाकर बांध देते हैं, छोड़ देते हैं। The dogs followed them silently. कुत्ते उनका पीछा चुपचाप कर रहे थे। अरम thought they would bark. अरम ये सोचता है कि कुत्ते भौंकेंगे। मुराद said that he had a way with dogs and that's why they did not bark. मुराद कहता है कि मुझे कुत्तों को हैंडल करना आता है, मैं उनको जानता हूँ, इसलिए वो नहीं भौंके। That very afternoon, John Byro came to the narrator's house. उसी दोपहर को जॉन बायरो नरेटर यानी अरम के घर पर आता है। He was very happy and thanked God. वो बहुत खुश था और गॉड को थैंक यू कहता है। His horse had become stronger and better tempered. उसका घोड़ा उसको मिल चुका है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है और उसका टेम्परामेंट यानी जो पहले वो जल्दी गुस्सा करता था या जल्दी, वो थोड़ा बेटर टेम्पर्ड हो गया है, शांत हो गया है। अंकल खुसरो अगेन शाउटेड एट हिम टू बी क्वाइट एज हिज हॉर्स हैड बीन रिटर्न। अंकल खुसरो जो कि अपने बैड टेम्पर, गुस्से के लिए विख्यात हैं और सनकीपन के लिए, वो उसके ऊपर फिर चिल्लाते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ, अब तो तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना। That's all about the chapter, children. Now I want to tell you what values are described here. एथिकल होना, एथिक्स, ये बच्चे शैतानियाँ ज़रूर करते हैं और शैतानी वश ही किसी का घोड़ा उठा लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको घोड़ा चलाने का शौक है।
लेकिन चूंकि पारिवारिक संस्कार जो जिस परिवार के हैं, जिस ट्राइब को बिलोंग करते हैं, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए और ट्रूथफुलनेस के लिए जाना जाता है, तो उसको वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और बाद में जाकर घोड़ा ओनर को वापस कर देते हैं, यानी एथिक्स को फॉलो करते हैं, अपने परिवार के संस्कारों को। इंटीग्रिटी और एंड ऑनेस्टी ये भी है कि अगर कोई परिवार बहुत गरीब भी है, जैसा कि ये कुनबा था, बहुत बुरी गरीबी थी इनके यहाँ, 2 टाइम का खाना भी अक्सर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि डिसऑनेस्ट हो जाया जाए। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि गरीबी का मतलब ये नहीं कि हम डिसऑनेस्ट हो और चोरी करना सीख लें। So that was all for the chapter. Now children, I hope you all have enjoyed, liked and understood the chapter. Thank you so much.